ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کہتے ہیں جب غربت انسان پر آتی ہے تو وہ مسلسل ٹینشن کا شکار رہتا ہے، مگر جب وہ غریبی سال ہر سال آپ کا مقدر بن جائے تو وہ غریبی آپ کو کوئی غلط کام کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرا نام شمائلہ ہے اور ہم لوگ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تو کوئی 4 مہینے بعد میرے باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میری ماں نے ہی مجھے پالا۔ پہلے بھی ہمارے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، لیکن چونکہ میرا باپ کچھ نہ کچھ کما کر لاتا تھا تو زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ لیکن جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو زمانے نے ہمیں اس بات کا احساس کرا دیا کہ یہ زمانہ کسی غریب کا نہیں ہے، بلکہ یہ امیروں کے ہمیشہ تلوے چاٹنے کو اپنی عزت گردانتا ہے۔ ہماری کسی نے کوئی مدد نہیں کی، بلکہ ہم لوگوں کے حالات بگڑتے ہی چلے گئے۔ میری ماں کو تو سلائی کڑھائی کا کام بھی نہیں آتا تھا۔ عموماً عورتیں گھر میں بیٹھ کر کرتی ہیں اور پیسے کما لیتی ہیں، اس لیے میری ماں نے امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں پر امیر لوگوں کے لیے اپنے ہی نخرے تھے، کوئی 4 دن کام پر رکھتی تو کوئی نکال دیتی۔ اس طرح ہمارا گزر بسر کچھ اس طرح اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں سے ان کا بچا ہوا کھانا مل جاتا تو ہمارے کھانے کا مسئلہ حل ہو جاتا، اور جو پیسے ملتے اس سے ماں گھر کی باقی ضروریات کا سامان لے آتی۔ میں نے پڑھائی بھی صرف 5ویں جماعت تک کی تھی، کیونکہ وہاں تک پڑھائی کا زیادہ کوئی خرچہ نہیں تھا اور پڑھائی بھی مفت تھی۔ ہماری زندگی یوں ہی کھینچا تانی میں چل رہی تھی۔ اب تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، کیونکہ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میری ماں نے میرے دماغ میں یہ بات بٹھانا شروع کر دی تھی کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ کام پر لے جایا کروں گی۔ میں نے ماں سے کہا کہ ماں، آپ تو نوکروں کا کام کرتی ہیں، آپ کو تو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ گھر کے نوکروں کے ساتھ مالکوں کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو اس کام سے دور رکھیں، مگر آپ تو خود مجھے اس کام میں لانا چاہتی ہیں۔ ایسے تو ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ تو وہ کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے، اب جس عورت کے ہاں میں کام کرنے لگی ہوں وہ بہت اچھی ہے اور تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گی، تم دیکھنا وہ تمہیں اپنی بیٹی بنا لے گی۔ لیکن مجھے ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ میں کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں نے جس طرح لوگوں کی غلامی کی تھی میں نے دیکھا تھا۔ جب دل چاہا لوگ انہیں جھڑک دیتے تھے اور جب دل چاہا تھا ان کی بے عزتی کر دیتے تھے۔ جس کام میں اتنی بے عزتی ہو وہ کام بھلا مجھے کیسے پسند ہو سکتا تھا؟ لیکن پھر بھی میری ماں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے اس گھر میں لے گئی جہاں وہ بھی کام کرتی تھی۔ یہ کوئی محل نما گھر تھا۔ اس گھر میں میری ماں پچھلے 5 سال سے کام کر رہی تھی۔ میرے بچپن سے لے کر اب تک ماں نے جتنے بھی گھروں میں کام کیا تھا، یہ واحد گھر تھا جس گھر میں میری ماں ایک لمبا عرصہ تک رکی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے اس گھر کو دیکھا۔ پتہ نہیں ان امیر لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے۔ میری ماں تو ساری زندگی ان کی غلامی کرتی ہی رہ گئی اور ہمیں اپنے پیسوں سے کبھی اچھا کھانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ خیر، میں اپنی ماں کے کہے مطابق اس عورت سے ملی، جو کہ میری ماں کے مطابق بہت رحم دل عورت تھی۔ اس بار مجھے میری ماں کا اندازہ کچھ غلط نہیں لگا، کیونکہ وہ عورت واقع میں بہت زیادہ اچھی تھی، مگر اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ پاگل تھا، ہر وقت ہنستا رہتا اور گھر کی چیزوں کو خراب کرتا رہتا۔ مجھے اس سے بہت زیادہ چڑ تھی۔ وہ گھر میں بڑے سے بڑے نقصان کرتا، مگر اس کی ماں ہنس کر وہ سارے نقصان پورے کر دیتی۔ ایک بار تو اس نے لاکھ روپے کا شو پیس بھی توڑ دیا اور مجھ پر الزام لگا دیا۔ میں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ عورت بولی، میں جانتی ہوں یہ تم نے نہیں کیا، اور اپنے بیٹے کو ڈانٹا، مگر اس کے بیٹے کے نخرے ہی بہت تھے۔ اس کی ماں نے جب اسے ڈانٹا تو وہ سارے گھر سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور رونے لگ گیا۔ اس کی ماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کو ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اسے تمہاری وجہ سے ڈانٹا ہے، جاؤ جا کر اسے منا کر لے آؤ۔ میں حیران ہی رہ گئی۔ عجیب و غریب فرمائش پر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا، میں کسی بچے کو منانے کا ہنر نہیں جانتی اور نہ ہی میں اسے منا سکتی ہوں۔ وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اسے خود ہی منا لیں۔
तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बहुत सारे पैसे दूंगी। पैसों की बात पर मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे किसी भी तरह बहुत सारे पैसे चाहिए थे और मैं मालकन की दी ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर उनके बेटे के कमरे में चली गई और उसे मनाने की कोशिश की। वो मान तो गया, लेकिन मुझे बड़ी अजीब अजीब नजरों से देखने लगा। मुझे भला उसकी नजरों से क्या फर्क पड़ता था? मुझे तो फर्क सिर्फ पैसों से पड़ता था। मालकन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। मैं बहुत खुश हुई थी और अब मैं खुद उनके घर काम करने जाना चाहती थी। अब जब भी वो नाराज होता तो मैं उसे मनाने चली जाती और मालकन मुझे ढेर सारे पैसे देते। ये सूरत हाल देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी, क्योंकि मुझे ज्यादा पैसे बहाने बहाने से मिल जाते। अब तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन कुछ अजीब हुआ और मेरी माँ ने मुझे वहाँ ले जाने से मना कर दिया। मैंने माँ से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मेरी वजह से आपको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। तो मेरी माँ ने कहा, तुम अभी बच्ची हो, अंदरूनी मामलात को ज्यादा नहीं समझती, इसलिए घर पर बैठी रहो और फजूल सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई। जिंदगी में पहली बार तो कहीं से ढेर सारे पैसे मिलने लगे थे और मेरी माँ ने मुझे वहाँ जाने से भी रोक दिया था। हालांकि मैं ये बात बखूबी जानती थी कि माँ ने अगर मुझे जाने से रोका है तो ज़रूर कोई वजह होगी, क्योंकि मेरी माँ मुझे खुद वहाँ पर लेकर गई थी, क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन अब मुझे उनकी कोई मंतक समझ नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, दुनिया के बाकी माँ बाप की तरह मेरी माँ भी मुझे लेकर डर गई हैं। शायद ये सब इसीलिए कर रही हैं, इसलिए मुझे घर छोड़ दिया है। मैंने बहाने बहाने से अपनी माँ की मिन्नतें करना शुरू कर दी कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाएं, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो काम करने में काफ़ी तकलीफ महसूस करती होंगी। मगर मेरी माँ वो तो अपनी जगह पर ही अटकी रही। इसीलिए एक दिन मैं तंग आ गई और अपनी माँ से लड़ाई कर ली और कहने लगी कि आपको मसला क्या है, मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं जा रही, मुझे तो पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। वो कहने लगी, तुम अपना बचपना छोड़ दो, क्योंकि वो अपने पागल बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रही हैं। माँ की बात ने मेरे सर पर जैसे कोई बम फाड़ दिया हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका वो पागल बेटा मुझसे शादी करने की ख्वाहिश करेगा। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने अच्छी खासी सुना दी। मेरी माँ खामोशी से सुनती रही और कहने लगी, तुम्हें गुस्सा आया? मुझसे भी जब मालकन ने बात की थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि भले हम लोग गरीब हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने पागल बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा दें। मुझे ये बात मंजूर नहीं थी और इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर नहीं जा रही थी। अब मुझे अपनी माँ की बात समझ आ रही थी, इसीलिए अब मैंने उनके घर जाने की जिद करना भी छोड़ दी थी और खामोशी से घर बैठकर दोबारा रूखा सूखा खाने लगी थी, क्योंकि भले मुझे पैसों की चाहत थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसों की खातिर उसके पागल बेटे से शादी कर लेती। दिन यूं ही गुजरते रहे। वो औरत हर रोज ही मेरी माँ से अपने बेटे की शादी मेरे साथ करवाने की बात कर देती और मेरी माँ हमेशा की तरह मना कर देती थी। लेकिन एक दिन मुझे ऐसी बात से पता चला जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। इस औरत ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से शादी कर लेती है तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम कर दूंगी। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। इनकी करोड़ों की जायदाद, महल जैसा घर, गाड़ियाँ, सब कुछ मेरे नाम हो जाएंगी। ये सोच आते ही मेरी आंखों में पैसों की चमक आ गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे नाम इतना सब कुछ कोई करने के बारे में बात भी करेगा। ये सब सुनने के बाद भी मेरी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया, मगर मैं तो सुबह शाम अपने नाम इतनी सारी जायदाद का सोच सोचकर ही परेशान हो रही थी। एक तरफ मेरा दिल कह रहा था कि इतनी सारी जायदाद मिल रही है तो शादी के लिए हाँ कर दूं, लेकिन दूसरी तरफ उसका वो पागल बेटा। भला एक पागल के साथ कोई कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकता है? जब मैं सुबह शाम इसी बारे में सोचती रहती तो फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं इस पागल से शादी कर लेती हूँ। जैसे ही वो औरत सारी जायदाद मेरे नाम करवा देगी, फिर मैं इस पागल से तलाक ले लूँगी। इसके बाद वो सारी जायदाद हमारी हो जाएगी, हमारे दिन बदल जाएंगे। मेरी माँ ने ये सब कुछ सुनकर मेरी कमर पर धमूका जड़ दिया। तुम क्या पागल हो गई हो? ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? ये अमीरों की दोस्ती और दुश्मनी कभी भी अच्छी नहीं होती, और वैसे भी मैं तुम्हें इस पागल के नाम नहीं लगा सकती।
एक बार तुमने उससे शादी कर ली, सारी जिंदगी के लिए तेरे माथे पर कलंक लग जाएगा। और ऐसी जायदाद का तुम क्या करोगी जब दोबारा तुमसे कोई शादी करने के लिए रजामंद नहीं होगा। मैंने कहा, ओहो माँ, तुम भी कौन से जमाने की बात कर रही हो। आजकल जिसके पास पैसा है वही सबसे ज्यादा इज्जतदार है। लेकिन मेरी माँ मेरी बात नहीं सुनती और दोबारा मुझे मना करके आ जाती। मगर मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपनी माँ को इस बात के लिए मना कर रहूंगी, और आखिरकार मैंने अपनी माँ को मना ही लिया। मेरी माँ ने कहा, देख लो, मैं तुम्हारी जिद के आगे झुक रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। कोई यूं ही तो अपनी सारी जायदाद किसी गैर और गरीब के नाम कर देता है। मैंने कहा, माँ, तुम यूं ही ज्यादा सोच रही हो। मैंने देखा है वो औरत अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। यकीनन उसने मुझसे शादी की बहुत ज्यादा जिद कर ली होगी, इसीलिए वो इसकी जिद के आगे झुक गई। और तुम भी तो मुसलसल इनकार करती रही हो। शायद इसीलिए उसे ये तरीका सूझा होगा कि वो सारी जायदाद मेरे नाम कर देगी। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। हमने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। जब मेरा निकाह हो गया और निकाह के बाद जब मैं अपने ससुराल में आई तो वाकई मेरी सास ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। मगर उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी, और शर्त ये थी कि मुझे 3 दिन तक वहाँ सोना होगा जहाँ उसका पागल बेटा सोता है, क्योंकि जब मैं जायदाद पाने के लिए शादी कर सकती हूँ तो फिर वहाँ भी सो सकती हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इसीलिए मैंने हंसते हंसते उनकी शर्त मान ली। अब मुझे अपना मुस्तकबिल बेहतर और शानदार नजर आ रहा था। अभी मुझे कमरे में सोए कुछ ही देर हुई थी कि जान हलक में आ गई, क्योंकि मालकन तो खुद सज धज के हंसती मुस्कुराती मेरे लिए दूध का ग्लास लिए आ गई। मैं तो उनकी ये अजीबो गरीब हरकतें देखकर हैरान रह गई, मगर खामोशी से वो दूध पी लिया। मेरी सास ने कहा कि तुम आज पहली बार कमरे में सो रही हो, इसीलिए आज की रात मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप चली जाएं, मैं अकेली सो जाऊंगी, मुझे नहीं डर लगेगा। मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और खुद मेरे साथ सो गई। मुझे अजीब सा लगा, भला कोई सास भी अपनी बहू के साथ सोती है। लेकिन फिर मुझे जल्द ही नींद आ गई और सुबह 12 बजे मैं सोकर उठी तो मेरी सास ने कहा, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई, मुझे तो लगा था कि तुम अभी और भी सोगी। मैं उनकी बात सुनकर कुछ शर्मिंदा सी हो गई। मुझे तो इतनी देर तक सोने की आदत नहीं थी। शायद रात मेरा बिस्तर बहुत ज्यादा नरम था, इसी वजह से मैं इतनी देर तक सो गई थी। मगर मैं शर्मिंदा नहीं हुई, क्योंकि अब तो ये घर मेरा ही था और मैं यहाँ की मालकन थी। मैं अपने घर में कभी भी सो कर उठूं, ये कौन होते हैं सवाल करने वाले। मैंने कहा कि कल शादी की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसी वजह से इतनी देर हो गई, वरना मैं इतनी देर नहीं सोती। दूसरे दिन भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दोबारा मेरी सास मेरे लिए दूध का ग्लास लेकर आ गई। मैंने कहा कि आज रात आप दूध लेकर क्यों आई हैं? मुझे दूध पीकर सोने की आदत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तुम इतनी बड़ी जायदाद की मालिक बन गई हो और बहुत ज्यादा अमीर कबीर हो गई हो। बड़े लोग रात को दूध पीकर सोते हैं, इसलिए ये दूध पीना अब तुम्हें अपनी आदत बना लेनी चाहिए। क्या बड़े लोग वाकई दूध पीकर सोते हैं? मैंने झट से पकड़कर दूध पी लिया, क्योंकि अब मैं भी अमीर हो गई थी और मेरा भी बड़े लोगों में शुमार होगा। मुझे वो सारी हरकत अपना लेनी चाहिए जो बड़े और अमीर लोग करते हैं। अगला दिन इस कमरे में सोने के लिए मेरा आखिरी दिन था और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके बाद सारी जायदाद पूरी तरह मेरे नाम लग जाती और मैं उस पागल से भी जान छुड़ा लेती। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। इस बार जो मेरी सास दूध लेकर आई तो मैंने बिना कोई सवाल किए दूध पी लिया और खामोशी से सो गई। मगर अगली सुबह जब मैं उठी, मुझे लगा कि सारी दुनिया में अंधेरा हो गया है। जहाँ मैं लेटी हुई थी वो एक अंधेरा और हबस ज़दा कमरा था, जहाँ आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा। मैं तो एक अच्छे और आला साफ सुथरे कमरे में सोई हुई थी। ये तो कोई खंडर नुमा कमरा था जहाँ से बहुत बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये कमरा किसी कचरे का ढेर हो। मैंने बार बार अपने दिमाग को झटका और उससे अपना वहम समझने की कोशिश की, लेकिन ये मेरा कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी। मैं ऐसी खौफनाक जगह पर मौजूद थी। मुझे खौफ के मारे रोना आया और अपनी अम्मा बहुत ज़्यादा याद आने लगी। मैं कितनी ही देर वहाँ भूखी लेटी रही और फिर मेरी सास मेरे सामने आई। जब वो मेरे सामने आई तो उन्होंने आते ही कमरे में रोशनी कर दी।
वो आज भी सजी हुई थीं और मुझे देखकर खुश हो रही थीं। मैंने कहा कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो इस कमरे में थी, फिर ये कौन सा कमरा है? तो वो मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें क्या लगा तुम एक गरीब घराने की भकारी लड़की इतनी बड़ी जायदाद की मालिक बन जाओगी और मैं खुशी खुशी ये सब कुछ देखती रहूंगी? कितनी बेवकूफ़ हो तुम। इसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। मैंने कहा कि मैंने तो आपसे कोई जायदाद नहीं मांगी थी, आप ही अपने पागल बेटे की शादी मुझसे करवाने और जायदाद मेरे नाम लगाने का बोल रही थी। इसमें मेरी तो कोई भी ख्वाहिश नहीं थी। आपके इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। मुझे इसी वक्त यहाँ से बाहर निकाल दें, वरना मेरी माँ पुलिस को बुला लेगी। मेरी धमकी पर वो हंस पड़ी और कहने लगी, तुम्हारी माँ को मैंने इतना पैसा दिया है कि अब वो सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल देखना भी ज़रूरी नहीं समझेगी। इसकी बात सुनकर मैं सख्ते में आ गई। ये सब क्या हो गया? मेरी माँ सही कह रही थी, मैं ज़रूर किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी और मैं वाकई मुसीबत में फंस गई थी। पता नहीं ये औरत किस इरादे से मुझे यहाँ कैद करके लाई थी। मैं सारा दिन भूखी रही तो मुझे अपना घर बहुत याद आने लगा। अपने घर में रूखा सूखा ही सही, मगर हमें 2-3 वक्त का खाना मिलता था। यहाँ तो मैं सारे दिन से भूखी थी। रात को मेरी सास दोबारा मेरे सामने आई और खाना मेरे सामने रख दिया। कहने लगी कि आज के बाद तुम्हें सिर्फ एक वक्त का खाना मिलेगा। अब तुम इसे कब और कैसे खाओगी ये तुम तय करोगी। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। दुनिया के सामने वो कितनी अच्छी बनती हैं, मगर इसका असल रूप सिर्फ मैंने देखा है। पहले तो कितनी प्यारो मोहब्बत से पेश आती थी। कौन जानता था इस मासूम चेहरे के पीछे इतना मकरू चेहरा छुपा हुआ है। मुझे अपनी किस्मत पर रोना भी आ रहा था और अपनी माँ की याद आ रही थी। क्या वाकई मेरी माँ दोबारा कभी मुझसे मिलने नहीं आएगी? काश मेरी माँ मुझसे मिलने आती तो उससे पता चल जाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं आप पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। जब रात का वक्त हुआ, रात के 2 या 3 बजे, मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कोई रो रहा है। मैं खौफ के मारे कांपने लगी। मुझे लगा अंधेरे में वहाँ पर कोई बदरू आ गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई वाकई में रो रहा था और ये कोई लड़की थी, मगर मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कैसे पता करती कि वहाँ कौन रो रहा है? तभी मेरी सास वहाँ पर आई और कहने लगी, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मैं नहीं रो रही, पता नहीं कौन रो रहा है। मुझे क्या मालूम आपने यहाँ किस किस को कैद कर रखा है। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि मैं डर गई हूँ। जिंदगी में हमने बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया था और इन तकलीफ़ों ने हमें बहुत निडर बना दिया था। इसीलिए चाहकर भी अपना डर उस पर अयान नहीं करना चाहती थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने वहाँ की लाइट चलाई और फिर इस कमरे में दूर जाकर एक जगह से पर्दा हटाया और वहाँ से एक दूसरा दरवाज़ा खोला तो अंदर से कई लड़कियों के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं तो दंग ही रह गई। मुझे नहीं मालूम था यहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ कैद हैं। और कुछ वक्त वो एक लड़की को बालों से पकड़ कर लाई और मेरे करीब फेंक दिया। तुम्हें सबके साथ इज्जत राज नहीं है तो यहाँ पर आकर इसके साथ अकेले बैठ जाओ। मैंने उस लड़की को देखा, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। शायद उसे भी एक ही वक्त का खाना मिलता था। यकीनन अगर मैं भी कुछ वक्त यहाँ पर कैद रही तो मेरी हालत भी इस लड़की जैसी हो ही जाती। मेरी सास तो वहाँ से चली गई और लाइट भी बंद कर गई। वो लड़की अंधेरे में डरने लगी। मैंने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अंधेरे से इतना क्यों डर रही हो? तो वो कहने लगी, मुझे अंधेरे में डर लग रहा है। मैंने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बहुत गरीब घराने से हैं, हमारे घर में ज़्यादातर लाइट नहीं होती और हमें अंधेरे में ही रहना पड़ता है, इसलिए मुझे अंधेरे की आदत है। यहाँ कुछ भी ऐसा वैसा डरावना नहीं है, हाँ मगर गर्मी और हबस है। तो लड़की कहने लगी, तो मुझे यहाँ कोई नई लड़की लग रही हो, ज़रूर ये तुम्हें भी कैद करके लाए हैं। मैं भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा घराना हमेशा से ही गुर्बत के ज़ेरे असर था। मेरे 3 बहन भाई थे, वो तीनों ही मज़दूर थे, फिर बाप भी मज़दूर था, इसलिए उनका ज़्यादा काम नहीं लगता था। ये औरत हमारे बराबर में ही रहती थी और हमारी बहुत मदद करती थी। फिर उसने एक दिन मेरी माँ से कहा कि वो मेरी शादी अपने पागल बेटे से करवा दे। पहले तो मेरी माँ नहीं मानी, लेकिन फिर उन्होंने इतना पैसा दिया कि मेरी माँ ने मेरी शादी इसके पागल बेटे से करवा दी
और मेरे माँ बाप बहुत सारा पैसा लेकर वो शहर ही छोड़कर चले गए। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही फ्रॉड औरत है। यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ कैद हैं वो सभी गरीब घराने से हैं और हमारी तरह ही अपने पागल बेटे से शादी करवा के यहाँ लाई गई हैं। अब मुझे पता चला था कि ये कितनी बड़ी साजिश थी और मैं उनके खेल में फंस गई। मेरी माँ ने मुझे कितनी बार रोका था, लेकिन मैं ही उनसे ज़्यादा लालच में आ गई थी। मैंने कहा, ये तुम सब लड़कियों के साथ क्या करेगी? ये हमारी तस्वीरें बाहर के लोगों को दिखाएगी और इन लड़कियों में से उन्हें जो भी पसंद आई वो लड़की खरीद कर ले जाएंगे। इसका मतलब है कि वो लड़कियों को बेचने का कारोबार करती है। मेरे दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। ये सब क्या हो गया? अगले दिन मेरी सास मेरी और बाकी तमाम लड़कियों की तस्वीरें निकाल कर चली गई। शायद वो आज किसी को ये सारी तस्वीरें दिखाने वाली थी। पहले भी इसके पास बहुत सारी तस्वीरें थी। मैं खुदा से अपने लालच के लिए माफ़ी भी मांग रही थी। काश वो मुझ पर रहम खाकर मेरी गलती को माफ़ कर दे और किसी को फरिश्ता बना कर भेज दे ताकि वो हमें इस चुंगल से छुड़ा कर ले जाएं। मैंने कहा, ये तुम सब लड़कियों को एक वक्त का खाना क्यों देती है? तो वो कहने लगी कि यहाँ से बहुत सारी लड़कियों ने भागने की कोशिश की है, इसीलिए हम सबको एक वक्त का खाना देती है ताकि हमें चलने फिरने या फिर भागने की हिम्मत ना हो सके। ये औरत इस कदर शातिर होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अगले दिन मेरी सास आई और इन लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ कर ले गई। मतलब इस लड़की को बेच दिया गया था। अब इस लड़की को लेकर गए 10 मिनट भी नहीं हुए थे, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। जहां मैं कैद थी वहां पर पुलिस आ गई और बाकी लड़कियों को भी छुड़वा कर वहां से बाहर ले गई। मैं जब बाहर आई तो मैंने देखा पुलिस वालों के साथ मेरी माँ भी खड़ी हैं। मुझे अपनी माँ को देखकर बहुत खुशी हुई और मैं रोती हुई अपनी माँ के गले लग गई। पुलिस ने इस औरत और बाकी सबको भी पकड़ लिया था। इसका पागल बेटा भी पुलिस की हिरासत में आ गया। लेडी कांस्टेबल ने इस औरत से बाकी सारी सच्चाई उगलवा ली। पुलिस इनको हथकड़ियाँ लगाकर जेल में ले गई थी और मैं खामोशी से अपनी माँ के साथ घर वापस आ गई। मैंने कहा, इसने तो मुझे बोला था कि उसने आपको बहुत सारे पैसे देकर भेज दिया है, अब आप कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखेंगी। तो वो कहने लगी, वो तो पागल थी। जब उसने मुझे इतने सारे पैसे दिए थे तभी मैं समझ गई थी कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। जिस दिन तुम्हारी शादी को तीसरा दिन था तब मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ मैंने और बहुत सारे लोगों को देखा। क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर काम करती थी इसलिए मुझे यहाँ पर आने से किसी ने नहीं रोका। जब ये बाहर के मुल्क वाले लोगों से बात कर रही थी तो मुझे पता चला ये तो लड़कियों की खरीदो फरोख्त करती हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं इसके गुनाहों को साबित करती, तो मैंने वहाँ खड़े होकर उसकी बातें सुनी और जब इन लोगों ने एक लड़की को लेकर जाने का वक्त और तारीख रखी तो मैंने वो वक्त और तारीख याद कर ली और आज का दिन था जिस वक्त ये लोग आएंगे और लड़की को लेकर जाने वाले होंगे। तब मैं पुलिस के साथ यहाँ पहुँच जाऊँगी। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा था क्योंकि ये बहुत बड़े लोग थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी खातिर मुझे ये करना पड़ा। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दे, आपने तो मुझे बहुत रोका था, मैं ही लालच में आ गई थी। अब मैं समझ गई हूँ कि पैसे नहीं, इज्जत सबसे अनमोल होती है।